Okay. So yesterday we had a talk about how organisms interact with each other and how these interactions are categorized. So one very basic example we discussed about mutualism कि जो एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. Why? Because both of us are actually gaining something from our relationship, right? You people are gaining knowledge. I am gaining mental satisfaction that I've taught something good to you people. So this kind of a relationship is mutual. Okay, we are together in this relationship, and both the participating authorities are gaining something from each other. Okay? Similarly, there are various different ways in which an organism can actually interact. अब देखो, interaction can be जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, that interaction is basically categorized. But जरूरी नहीं है कि ये सारी कैटेगरीज हर एक इंडिविजुअल के लिए वैलिड हो. फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी समवन who doesn't have those things which you people have, right? तो उसकी रिलेशनशिप उसके इन्वायरमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होंगी. बट एज ह्यूमन बीइंग्स वी डिपेंड ऑन आवर मदर्स एंड फादर्स. वो एक जनरल interaction है which offspring have with their parents. अब किसी के अगर पेरेंट्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रिलेशनशिप वैसा नहीं होगा. ठीक है, इट कैन बी अ डिफरेंट बट विद सम अदर पीपल. हो सकता है उनके चाचा या मामा या एनी अदर पर्सन इन द फैमिली वो प्लेज द रोल ऑफ देयर पेरेंट्स, राइट? So these things are not individual based. These interactions which we will be studying are more species based or in general community based. एक particular community, एक particular species के लिए valid है, एक particular individual के लिए valid हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. Okay? ये clear है? तो सबसे पहले आता है the first interaction which we commonly see is competition. ठीक है, क्लास में फर्स्ट कौन आएगा? कंपटीशन, राइट? रेस में फर्स्ट कौन आएगा? कंपटीशन. चांद पे सबसे पहले कौन पहुंचा? कंपटीशन. तो एवरीवेयर वी सी कंपटीशन इन आवर डेली लाइफ. Even two ants which are fighting, which are moving ahead in their race, which one goes first, which one is last, it's all a competition. Basically, competition को अगर आप define करेंगे, especially in environmental science, तो यहाँ पे two terms are very important. First is limited resources, that the two participants which are actually in competition with each other have limited resources. Okay? तो उनकी resources limited हैं, right? And the second is the participating individuals themselves. So there must be participating individuals who are interacting in a competitive way. And the second thing is what are they competing about? They are competing for limited resources. Okay? यही दो terms आपकी पूरी definition बना देते हैं. Can you see the highlighted word competition, which is highlighted in yellow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. So I'm reading that part and just focus on the words. Competition is a relationship in which different individuals or populations attempt to use the same limited resources. I don't know what. Different individuals या community या population, and they are competing for limited resources. अब हर जगह इंसान in every field of anything, humans have conquered the world, and because of this we have actually misused the natural resources. Why? Because in this competition between animals, plants and humans have a upper hand, right?
वी आर मोर स्ट्रॉन्ग। एक कहावत है इंग्लिश की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सुनी है? हैव यू हर्ड दिस? No, ma'am. No, ma'am. No? Survival of the fittest is survival of the fittest. मतलब you will only be able to survive if you are the best. The theme of Three Idiots movie is this line, that you have to be the best or else you will not be remembered. तो कंपटीशन के बेस पे ही तो पूरी मूवी बनी है। ओके, सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज एक्चुअली द रूल ऑफ एवोल्यूशन। जो चीजें चेंज हुई हैं फ्रॉम डायनासोर एरा, यू नो, डायनासोर थे तब से लेकर अब तक जितने भी मॉडिफिकेशन इस स्पीशीज में हुए हैं, दे आर अ रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब अगर हिरन है, नहीं, अगर वुल्फ है और टाइगर है, ठीक है, वुल्फ इज ऑल्सो अ मीट ईटर विच इज अ कार्निवोर एंड टाइगर इज ऑल्सो अ मीट ईटर विच इज अ कार्निवोर। सो बोथ दीज पार्टीज आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर मीट। तो अब क्या लगता है, इन दोनों में से कौन जीतेगा? अगर इन दोनों की डायरेक्ट फाइट करा दें तो कौन जीतेगा? Tiger. Tiger. So this is a common conclusion कि survival of the fittest. तो टाइगर इसलिए जीता है क्योंकि it is stronger than a wolf. तो wolf के पास रास्ता क्या बचता है? wolf के पास रास्ता ये बचता है कि instead of involving tiger in a direct fight, take a alternative way. उसके सामने ही मत पड़ो। टाइगर आपके सामने आएगा तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो करेगा टाइगर करेगा, है ना? Yes, ma'am. राइट? सो दिस इज द वे ऑफ कंपटीशन, जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो जीतेगा वो सरवाइव करेगा। द टैगलाइन, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स दिस, एंड इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन है इसलिए चीजें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। टेक्नोलॉजीज में कंट्रीज आपस में फाइट करती हैं। पता है ये चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी क्यों इंट्रोड्यूस होती है? बिकॉज वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक समथिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सम न्यू थिंग्स। वाई? बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत है मार्केट में, है ना? जिसकी चीज सबसे बेस्ट होगी उसको मौका दिया जाएगा आगे बढ़ने का। तो सरवाइव कौन करेगा? जो सबसे अच्छा होगा। सो दिस इज कॉम्पिटिशन। ओके? Yes, ma'am. ओके, तो एक और चीज बोलते हैं कंपटीशन से रिलेटेड, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये सबके साथ होता है। अगर सामने खतरा है या सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जो डेंजरस है, आप उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करोगे ये बताएगा कि आप फ्लाइट मोड में जाओगे कि फाइट मोड में जाओगे। फ्लाइट मतलब वहां से भाग जाना और फाइट मतलब वहां रह करके फाइट करना, राइट? तो कॉम्पिटिशन ऑल्सो इंस्टिल्स द इमोशन और द फॉर्मूला फॉर फाइट एंड फ्लाइट। If you are strong enough, if you think you can take the situation head on, you will fight. And if you think that the situation is way more worse than what you can handle, you will flight. You will run away from the situation. Okay? So in some cases where you see that the competition is more strong or where the competition is more severe, the species tend to flight. जैसा कि अभी हम लोगों ने वुल्फ और टाइगर के केस में देखा। अब अगर टाइगर और वुल्फ की लड़ाई होगी तो टाइगर वुल्फ क्या करेगा? वहां से चला जाएगा, भाग जाएगा, बिकॉज ही नो दैट ही वोंट बी एबल टू ओवरकम द पावर, द स्ट्रेंथ ऑफ अ टाइगर, राइट? बट इट विल फाइट हेड ऑन इफ देयर इज अ शीप इन फ्रंट ऑफ हिम। अगर शीप और वुल्फ की फाइट करा दोगे तो शीप क्या करेगा? अब शीप फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में फ्लाइट करेगा, उड़ जाएगा, हट जाएगा वहां से, एंड वुल्फ विल ट्राई टू फाइट ऑन। अगर दो वुल्फ की लड़ाई कर दे तो भी फाइट होगी,
because both the wolves are thinking that we are strong enough, I am strong enough. तो ये कंपटीशन का फर्स्ट इंटरैक्शन समझ में आया? How species are interacting amongst each other through the medium, through the mode of competition, and it is happening individually, it is happening as a group, it is happening as a community, it is happening all the time. Clear है सबको? Any doubt so far? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Okay. So indirect competition, जैसा कि हम लोग अच्छा, competition is also seen in case of plants. एग्जाम्पल बता सकते हो? जंगलों में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं. Yes, ma'am. Have you seen in jungles there are very tall trees? Yes, ma'am. तो वहां पे इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे हो जाते हैं? वही पेड़ अगर हम घर में लगाएं, वही पेड़ की स्पीशीज अगर हम घर में लगाएं, तो इट डज नॉट रीच दैट हाइट. Yes, ma'am. तो जंगलों में ऐसा क्या हो रहा है? मैम अगर हम लोग घर में लगाएंगे तो हम लोग पॉट में लगाएंगे, जंगलों में लगाएंगे तो वहाँ पे पॉट वॉट तो होगा नहीं. हाँ, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर हम घर में भी पॉट में ना लगा के प्रॉपर फार्म हाउस में लगा दे, 2 पेड़ 3 पेड़ हमने बहुत दूर दूर लगा दिए, तो क्या उतनी हाइट पहुंच पाएंगे ये लोग? मतलब मैम जंगल, मैम घर में उसे वो उस पेड़ को जो भी हम लोग लगाएंगे मैम वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा. No, not so much. Atmosphere plays a role, yes, but it cannot really directly influence. बेटा कंपटीशन, जंगलों में हर 2-2 कदम पर पेड़ होते हैं, so each and every tree is in competition with the other. मैम पेड़ से कंपटीशन करेंगे? हाँ, they are actually they are competing for sunlight, nutrients, water. तो अब उनके पास 2 ही तरीके हैं. They cannot run, they cannot move. तो क्या तरीका है उनके पास ऊंचा होने का? ठीक है, रूट को दूर दूर तक फैला देने का. This is the only 2 ways in which a plant grows, है ना? तो अगर उसको कंपटीशन में आगे जाना है तो उसकी रूट स्ट्रांग होंगी, ठीक है, उसकी स्टेम स्ट्रांग होगी और टॉल ट्रीज होंगे. टॉल का फायदा क्या कि अगर टॉल ट्रीज होंगे तो मैक्सिमम सनलाइट गैदर कर पाएंगे. अब समझ में आया? इसीलिए जंगलों में जो पेड़ की हाइट होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो ज्यादा होती है. इसीलिए आपके घर से पेड़ काट के नहीं ले जाते, जंगलों से पेड़ काटे जाते हैं फॉर वुड, फॉर टिम्बर. समझ रहे हो? यस मैम. ओके, सो कॉम्पिटिशन कैन बी डायरेक्ट, कॉम्पिटिशन कैन बी इनडायरेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट जब आप हेड ऑन फेस करते हो, इनडायरेक्ट जैसे कि प्लांट के साथ में होता है. सेम थिंग हैपेंस विद वीड. वो जो पेड़ के साथ जो छोटे छोटे से पौधे जैसे नहीं निकल आते हैं, उसको हटा दिया जाता है. स्पेशली जब क्रॉप एग्रीकल्चरल फील्ड में ये वीड्स निकल आते हैं तो उनको हटा दिया जाता है. वीडिंग, इट इज द प्रोसेस नोन बाय वीडिंग. तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो वीड वहां पे रहेंगे तो जो न्यूट्रिएंट, जो सनलाइट एंड प्रॉपर केयर हमें क्रॉप को देनी थी, उसके लिए अब वीड्स भी साथ में आ जाएंगे. ओके, यस मैम. हेलो, हाँ, समझ आया इतना? ओके, नाउ देयर इज अनदर थिंग रिलेटेड टू कंपटीशन which is adaptation because of competition. तो कंपटीशन की वजह से जो हमने अभी बात करी थी, दैट एवोल्यूशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कंपटीशन. ठीक है, तो कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है
वैसे वैसे स्पीशीज के अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं, बिकॉज ऑफ विच इट कैन वेल अडेप्ट टू द सिचुएशन. जैसे एक आप उसको देखो, कमेलियन को. व्हाट इज अ कमेलियन? मैम किसे? कॉमेडियन नहीं बोल रही हूँ, कमेलियन. गिरगिटान. यस मैम, पता है गिरगिटान. गिरगिटान पता है? हाँ, गिरगिटान को इंग्लिश में कहते हैं कमेलियन. नाउ दिस कमेलियन हैज a technique of changing colors so that it can save itself from predators. कोई उसको हर्ट ना कर दे, कोई उसको परेशान ना करे, कोई उसको हार्म ना पहुंचाए, उससे बचने के लिए उसकी टेक्निक क्या है? रंग बदलने की. So do you think it happened like this always? ऐसा ही होता आ रहा है सदियों से? यस मैम. नहीं. It happened because of the conditions in competition. छिपकलियों से कंपटीशन हो रहा था. Lizards and chameleon are of same category, but उनकी स्पीशीज अलग है. फैमिली एक है, स्पीशीज अलग है. एंड because of this widespread competition, they developed this category, this characteristic of changing colors, which gives them an advantage of being saved from predators. Okay? Yes, ma'am. अब समझ में आया कि evolution कैसे हो रहा है. Similarly, if you see कि जो चेंजेस धीरे धीरे करके होते हैं. अब we as humans came from chimpanzees. जो हमारी सबसे ancestral form है वो chimpanzees की है, right? And chimpanzees have a tail, and we also had a tail back then. But because of less usage, tail का कोई काम नहीं था, because we were working on our legs, we were taking things from our hands, we were holding things from our hands. तो ये सारी चीजों ने धीरे धीरे करके tail के usage को कम कर दिया. Why do you think a monkey needs a tail? Monkey is also a form, मतलब हमारे जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बंदरों में. Yes, right? तो उनकी टेल होती है, हमारी टेल नहीं होती है. This gives us an advantage because our hands and legs are properly developed. उनके hands और legs उतने developed नहीं होते. Developed in the sense they cannot really walk like we walk. Okay? Yes, ma'am. So this is where adaptation towards, because of competition happens. We are actually, every species, everything is actually adapting itself to the new environment. Okay? समझ में आया इतना? No, ma'am. Okay. Okay. So competition is it. कंपटीशन में इतना ही. नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रेडेशन की. व्हाट डू यू मीन बाय प्रे? ये देखो एक बर्ड दिख रही है जो लिजर्ड खा रही है. डू यू थिंक देयर इज कंपटीशन बिटवीन अ लिजर्ड बर्ड? यस मैम. बर्ड और लिजर्ड के बीच में कंपटीशन है? यस मैम. नहीं है. बर्ड और लिजर्ड के बीच में कंपटीशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज लिजर्ड कांट फ्लाई, बर्ड कैन. क्या बताया था? लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है. अब जो खाना, देखो एनिमल्स के लिए सबसे बड़ी रिसोर्स क्या है? उनको पंखे वंखे नहीं चाहिए, उनको घर नहीं, उनको एसी कूलर टीवी नहीं चाहिए.
These are not the resources that animals want. What do they want? They want food, they want shelter, and they want air and water. बस यही उनके resources हैं, right? And what food a lizard eats? नहीं पता। हाँ मैम पता है, इंसेक्ट्स पता है, इंसेक्ट। और बर्ड क्या खाते हैं? हम लिजर्ड। डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज वो हर्बीवोर्स कार्निवोर्स दोनों हो सकते हैं। सीड्स भी खाते हैं, छोटे इंसेक्ट्स भी खाते हैं, लिजर्ड्स को भी खा लेते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में कंपटीशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों के घर अलग अलग हैं, दोनों के रिसोर्सेज अलग अलग है। कंपटीशन तब होगा जब रिसोर्सेज सेम हो। ओके, डिफरेंस समझ में आया प्रेडेशन और कंपटीशन का? कंपटीशन आप साथ वालों से करते हो, ये कहते हो ना, तुमसे क्या कंपटीशन करें, साथ वालों से होता है कंपटीशन, कहते हो ना? यस मैम। Yes, ma'am. So competition is when we have we have same resources, we have same target. Predation is when one is of upper hand and the other one is lower. ठीक है? कंपटीशन आपका आपस में होता है, जैसे स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स के बीच में होगा। प्रेडेशन कब होगा? जब टीचर आएगी यस मैम। मारने। यस मैम। दैट इज प्रेडेशन, ठीक है। बट प्रेडेशन में दो चीजें हैं, दो पार्टिसिपेंट्स हैं। वन इज प्रे एंड द अदर वन इज प्रेडेटर। प्रे कौन है? जिसपे शिकार हो रहा है, एक शिकार और दूसरा शिकारी। ओके, तो एक है शिकार, प्रे, जिसका शिकार करेंगे, एंड द वन हु इज एक्चुअली हंटिंग द प्रे इज प्रेडेटर, जो एक्चुअली में शिकार कर रहा है। एक है शिकार और एक है शिकारी। तो प्रे इज शिकार, समथिंग विच इज बीइंग हंटेड, एंड predator is someone who is actually hunting. डिफरेंस समझ में आया प्रेडेटर और प्रे के बीच का? Yes, और ये जो रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन दीज टू इज नोन एज प्रेडेशन। जब प्रे और प्रेडेटर के बीच का रिलेशन आता है तब हम कहते हैं कि ये predation है, and it can be seen many times. Frog prey on insects, snake prey on frogs. So snake is predator for frog, frog is predator for the insect. So ये जो relationship है, eating और being eaten, या तो आप खा रहे होगे या तो किसी का खाना बन रहे होगे, ठीक है, फूड चेन में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रेडेशन। समझ आया? यस मैम। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बहुत क्लियरली, एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रेडेटर एंड द ऑर्गेनिज्म दैट इज फेड अपॉन इज नोन एज प्रे। जो खाया जा रहा है वो प्रे और जो खा रहा है वो प्रेडेटर। ओके, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज प्रेडेशन, राइट? अब स्नेक माइस खाते हैं, बैट इंसेक्ट खा रहे हैं, वेल्स छोटी फिशेस या क्रिल्स खा रहे हैं। सो दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ प्रेडेशन। प्रेडेशन में तुमको क्या लगता है किसका फायदा हो रहा है? Who is being benefited over here? Predator. Predator, obviously. Prey तो खत्म हो गया ना, बेचारा खाना बन गया। So predation में there is only one party which is benefiting. सिर्फ एक पार्टी है का फायदा हो रहा है। ओके, कंपटीशन में भी एक ही का फायदा होता है,
जो जीता उसका फायदा, जो हारा उसका लॉस, राइट? सो कंपटीशन एंड प्रेडेशन आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. कंपटीशन 7 वालों के साथ, प्रेडेशन एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग वाले के साथ. ओके, पर फायदा दोनों में ही एक का ही होता है. कंपटीशन और प्रेडेशन दोनों में ही एक का फायदा है. क्लियर? यस मैम. एनी डाउट? नो मैम. No, ma'am. ओके ओके, वेरी गुड. अच्छा, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि कंपटीशन के बेसिस पे अडेप्टेशन करते हैं एनिमल, उसी तरीके से प्रेडेटर और प्रे में भी अडेप्टेशन होता है. जैसे हिरन जो है उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है. ठीक है, उसकी स्पीड क्यों अच्छी होती है? क्योंकि अगर स्पीड अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा? टाइगर आके खा जाएगा. यस. Insects can fly, but frog cannot. तो इंसेक्ट के पास अडेप्टेशन है फ्लाई करने का. क्यों? बिकॉज इट गिव्स एन एज. देखो, सबके पास, सबको भगवान ने एक ऐसा, क्या कहते हैं उसको, टेक्निक, एक ऐसी ताकत जरूर दी है बिकॉज ऑफ विच इट कैन एक्चुअली सेव इटसेल्फ फ्रॉम बीइंग ईटन. तो यही जो चीजें हैं, यही जो अडेप्टेशंस हैं, यही सारी उनके काम आती हैं when somebody is attacking you, right? Yes ma'am. Okay. अच्छा, what do you mean by parasite? पैरासाइट क्या होता है? आपने देखा होगा बारिश के मौसम में अक्सर वो जमीन पे रेंगने वाले कनखजूरे और लीचेस दिखाई देते हैं. यू नो, इन वेरी टाइनी ब्लैक हेयरी इंसेक्ट एंड लीचेस जो अगर स्किन पे चिपक गए तो दे कीप ऑन सकिंग योर ब्लड एंड इट्स वेरी पेनफुल. ठीक है, so parasites are those organisms that actually feed on another organism. ठीक है, या तो ये पैरासाइट उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने लगेंगे या फिर उनसे न्यूट्रिशन निकालते रहेंगे. मतलब अपना खाना नहीं बनाते, आपने खाना बनाया है वो पूरा खा लेते हैं, आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन निकाल लेते हैं. सो दे आर पैरासाइट. And this kind of relationship between a parasite and a host कौन होगा? जो सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होगा. So this kind of a relationship is known as parasite, where one organism is actually feeding on the other while the other is providing nutrition willingly or unwillingly to the parasite. जरूरी नहीं है कि हमेशा मन से ही खाना खिलाया जाए. अब जबरदस्ती पैरासाइट आपके ऊपर चिपक गया है तो न्यूट्रिशन तो पूरा ले रहा है, बट क्या आप चाहते हो उस पैरासाइट को? डू यू वांट दैट पैरासाइट ऑन योर बॉडी? नो मैम. नो, यू डोंट वांट इट टू बी सकिंग योर ब्लड, राइट? सो दीज थिंग्स, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैरासाइट एंड द रिलेशनशिप इज पैरासाइटिज्म. पैरासाइट के आगे इज्म लगा दिया, पैरासाइटिज्म. Yes. Okay, so what are the parasites? What are the examples of parasites? Fleas, tapeworms, heartworms, bloodsuckers, leeches. ये सारे के सारे जो कहीं पर भी अगर चले जाएं और जनरली दे स्टिक टू द सरफेस और वहां से पूरा न्यूट्रिशन निकालते रहते. दैट इज पैरासाइटिज्म. Any doubts here? No ma'am. No, ma'am.
क्लियर है अच्छे से? अच्छा देखो इसमें लास्ट लाइन देखो, सबसे नीचे लिखा हुआ है द होस्ट इज ऑफन वीकेंड और एक्सपोज्ड टू डिसीज बाय द पैरासाइट। ये जो कीड़े होते हैं ना जो आपको बीमार कर जाते हैं, दे आर एक्चुअली पैरासाइट। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि बारिश के मौसम में आपको कई जगह रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन डिसीजेस हो जाती हैं, दे आर बिकॉज ऑफ पैरासाइट। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जनरली द होस्ट बिकम वीकेंड, या तो वो बीमार पड़ जाता है या तो कमजोर हो जाता है। भाई उसका न्यूट्रिशन ले लोगे वो तो कमजोर पड़ ही जाएगा ना। यस मैम। इतना चीजें क्लियर है सबको? यस मैम। नाउ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट लेट्स रीड द डेफिनेशन वंस अगेन। सो ऐसी रिलेशनशिप जहां पे दो पार्टीज एक दूसरे पे इक्वल डिपेंडेंट हैं और इक्वल बेनिफिट ले रही हैं दोनों से, उस टाइप के रिलेशन को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज इन विच ईच स्पीशीज प्रोवाइड अ बेनिफिट टू द अदर। मतलब दोनों का फायदा होगा और दोनों एक दूसरे पे इक्वली डिपेंडेंट होंगे, उसको कहेंगे म्यूचुअलिज्म। Okay, for example, very good example of bees and flowers. Flower needs bees for pollination and bees need flowers for nectar. Bees flower से nectar लेती हैं, अपना खाना लेती हैं, and in return plants को, flower को pollination का मौका देती हैं. Okay, so both the parties here, the flower and the bees, both are benefiting each other and both are dependent on each other. Bees को खाना नहीं मिलेगा अगर फ्लावर नहीं होगा, और फ्लावर का पॉलिनेशन बहुत स्लो हो जाएगा अगर बीज नहीं होंगे। There is an entire movie based on this concept. It is an animated movie. I don't know its name, but पूरी बीज की कहानी दिखाई है उसमें। And there is a bee who do not want to, who just don't like flowers. मतलब उसको नेक्टर कलेक्ट करना अच्छा नहीं लगता है। That too for the queen bee. पता है ना, क्वींस में एक बी, मतलब बीज में एक क्वीन होती है, and all the nectar which several bees collect is being given to that queen bee. वो काम नहीं करती, वो सिर्फ सुपरवाइज करती है, राइट? So इस तरीके की पूरी मूवी बनी है विच इज बेस्ड ऑन दिस म्यूचुअलिज्म, जिसमें एंड में दिखाते हैं कि अगर बीज नहीं होंगे तो फ्लावर्स जिंदा नहीं रहेंगे, और फ्लावर्स नहीं होंगे तो बीज को खाना नहीं मिलेगा। ओके, so this is mutualism. Yes. Okay. Should we keep our session till here?